Good morning, student. Now tell me answers of some questions. When the organization grows bigger and bigger, then what do you do for various activities? Yes, you are right. We create separate department for every activity. Now tell me the name of department on the basis of functions. Yes, you are right. Production department, marketing department, finance department. Very good. Now today we shall discuss, or I shall discuss, the structure of any organization or organizational structure of the organization. Now there are two types of organizational structure. First is functional structure, which is created on the basis of function, and second, divisional structure, which is created on the basis of product lines or territory. Now what do you mean by organizational structure? Organizational structure is the outcome of the organizing process. The organizational structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resources. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग? एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो रिलेशनशिप बताता है कि कौन पीपल किसको रिपोर्ट करेगा, क्या उसका वर्क होगा, उस अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट होता है जिसमें क्या क्या रिसोर्सेस एलोकेट किया जाएगा। ये सभी बातें को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज ए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अंडर विच two managers are working, production manager and marketing manager. Again, below production manager, there is a 4-person working under production manager, 4-man fabrication, 4-man assembly, and there are 2 workers. Similarly, in marketing manager, 4-person are working: sales officer A, sales officer B. Under sales officer A, there are some salesperson, and sales officer B, there are other salesperson. This is the relationship between people. It means who will report to whom, and at the end of the day, whom the work should be reported. This is known as organizational structure. Now, it is very important term, span of management. It also comes in the organizational structure. Span of management क्या है? The span of management gives shape to the organizational structure. Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. A proper organization structure is essential to ensure a smooth
फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट में रेफर करता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that can be effectively managed by a superior. It means number of workers working under any superior. स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इसको हम लोग वाइडर कर सकते हैं। वाइडर एक होता है, एक नैरो होता है। तो वाइडर किसको कहेंगे और नैरो किसको कहेंगे? जैसे ये दिस इज द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज वाइडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो टॉप लेवल है और इसके अंडर में देयर आर 5 पर्सन वर्किंग, 5 पर्सन के अंडर में देयर आर अदर पर्सन वर्किंग। इनका जो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है, लेस नंबर ऑफ पर्सन इज वर्किंग, हेयर मोर नंबर ऑफ पर्सन इज वर्किंग, सो देयर इज वाइडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग स्पेन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior, or how many subordinates are under one superior. Span of management determines the level of management in the structure. The span of control depends upon the capacity and intelligence level of managers and employees. स्पेन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, एक सुपेरियर के अंडर में कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो उसको कहते हैं स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक सुपीरियर के अंडर में 10 वर्कर वर्क कर रहे हैं और एक सुपीरियर के अंडर में 7 वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो जिसके अंडर में 10 वर्कर वर्क कर रहे हैं उसका वाइडर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है। और जिसके अंडर में 7 वर्कर वर्क कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे हैं उसका नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। Now, in the earlier, I have discussed the type of organizational structure. There are 2 types of organizational structure. First is functional structure and second is divisional structure. Any organization adopt these 2 type of can adopt these 2 type of structure. In functional structure, the department are created on the basis of function. As for example, here department is created on the basis of function in functional structure. On the basis of function, here is a marketing manager, sales, here is a production manager. This department created on the basis of production. There is finance manager, human resource manager, purchasing manager, public relation manager. This department is created on the basis of separate department is created on the basis of these functions. So it is a functional structure. And divisional structure, this department is created on the basis of product lines. अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल, बुक्स के एक अलग प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए अलग CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। पीरियोडिकल्स के लिए अलग है, पीरियोडिकल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है। फिर स्टेशनरी के लिए अलग है डिपार्टमेंट है, म्यूजिक एंड मूवीज़ के अलग डिपार्टमेंट है। तो ये प्रोडक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, इसीलिए इसको डिविजनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट के आधार पर भी होता है, टेरिटरी के आधार पर भी होता है। टेरिटरी माने क्षेत्र के आधार पर भी होता है। जैसे टेरिटरी का जैसे नॉर्दर्न डिवीज़न हो गया, साउदर्न डिवीज़न, वेस्टर्न डिवीज़न, वेस्टर्न डिवीज़न, ईस्टर्न डिवीज़न, सेंट्रल डिवीज़न, इस तरह से रहता है। तो उसको भी कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जो है
फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले भी बताया गया है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शन के आधार पर क्रिएट किया जाता है, मेजर फंक्शन के आधार पर, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर मेन जो होता है मेजर फंक्शन होता है। मेजर फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया रहता है। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर इन जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इनटू मेजर फंक्शंस and these major functions are organized as separate departments. This kind of organizational structure classifies people according to the function they perform in the organization. A person will be charge of each department. In case of manufacturing concern, you can have production, purchase, marketing, फाइनेंस। एक मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कंसर्न है, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है, तो उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। ये सब डिपार्टमेंट हो सकता है क्योंकि ये सब मेजर फंक्शन है। तो फंक्शन के आधार पर जो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया रहता है उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द मेजर फंक्शन on the basis of which department is created. Here sales is the major function, so there is a marketing and sales manager. Production is a major function in any manufacturing unit, so there is a production manager, a production department. Finance is a major function, so there is a finance manager or finance department. Human resource is a major function. Human resource recruitment of worker, recruitment of staff to fill the vacant post, giving training to the workers. This department handles this type of activities. Manager purchasing deals in the purchase of raw material, goods, machinery, anything. Public relation manager, this manager deals with the public, outside public, how to build good image in the public. ये सब मेजर फंक्शन है, उसके आधार पर डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया रहता है। एग्जाम्पल इसका जैसे है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है प्रेसिडेंट, उसके अंडर में वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट एक पर्सनल एंड स्टाफ हो सकते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में कौन कौन काम कर रहे हैं, मार्केटिंग है, डिपार्टमेंट रिसर्च है, उसके बाद से आपका मार्केटिंग रिसर्च है, मार्केटिंग प्लानिंग है, फिर एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, ये सब मार्केटिंग में आएगा। मार्केटिंग का अलग अलग डिपार्टमेंट। फिर इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है, पैकेजिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है। उसी तरह प्रोडक्शन में अलग अलग है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग है, परचेजिंग है, टूलिंग है, जनरल प्रोडक्शन है। उसी तरह फाइनेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस प्लानिंग है, बजट है, जनरल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये सब फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसी को कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल जैसे अ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुरुगांव and marketing department located at Faridabad. The company manufacture different type of trucks. In this case, the company should adopt functional structure. See, since it manufactures trucks only a single product. ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सिंगल प्रोडक्ट ट्रक बनाता है, इसीलिए इसका डिपार्टमेंट फंक्शन के आधार पर होना चाहिए। इसलिए इसका अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट क्या क्या है हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है गुड़गांव में, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है फरीदाबाद में। हियर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, इट हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा रिक्वायर है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, सो इट शुड एडॉप्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का ज़रूरत है,
इसीलिए इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंडर में काम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजर एंड सेल्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है विच इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, उसका क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन, सेकेंड इजी सुपरविजन, थर्ड है इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशिएंसी, फोर्थ है इफेक्टिव ट्रेनिंग, और फिफ्थ है लोअर कॉस्ट। दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर of any organization. Now I shall discuss all these advantages one by one. First advantages, specialization. When the activities are grouped according to the type of function, then all the activities related to one type only, it provides a specialization which makes optimum utilization of मैन पावर। अगर कोई भी डिपार्टमेंट जो है एक सिमिलर फंक्शन के आधार पर, एक ही फंक्शन के आधार पर अगर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं तो स्पेशलाइजेशन के चलते जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, मैन पावर होता है। जैसे कोई है वर्कर है, जैसे कोई कारपेंटर है, तो कारपेंटिंग का काम करता है, हमेशा वुड से टूल्स वगैरह फर्नीचर बनाता है, तो उसमें उसका स्पेशलाइजेशन है और स्पेशलाइजेशन के चलते वो कम समय में ज़्यादा काम करेगा। उसी तरह जैसे स्कूल में कोई टीचर है, अगर फिजिक्स पढ़ाने का उसके पास स्किल है, स्पेशलाइजेशन है, तो फिजिक्स अच्छे तरह से टीचर पढ़ा सकता है और उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा और कॉस्ट रिड्यूस होगा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट रिडक्शन का या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड इजी सुपरविजन। द सुपरवाइजर बिकम्स फेमिलियर with the type of tasks to be performed because all tasks are related to one function only. As a result, he can easily supervise his department. सुपरविज़न में भी आसानी होती है क्योंकि एक जो सुपरवाइज़र है एक तरह के काम से फेमिलियर हो जाता है और आसानी से वो किसी भी डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर सकता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है प्रोडक्शन फील्ड के बारे में फेमिलियर है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से सुपरवाइज कर सकता है, इजीली हैंडल कर सकता है और सभी उसको नॉलेज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में, इसलिए सुपरवाइज करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। थर्ड एडवांटेज इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर performing same type of function again and again, which makes them specialized and improve their efficiency. It ensure increased profit also. मैनेजरियल एफिशिएंसी इसका मतलब है मैनेजर एक ही तरह का काम बार बार कर रहा है तो उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाता है और स्पेशलाइज होने के चलते उसका मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने से कॉस्ट रिड्यूस होता है, कॉस्ट रिड्यूस होने का चलता है प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इस तरह से जैसे कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसको मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज है, वही काम बार बार करने में उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाता है और प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल करता है, ज़्यादा सेल करता है, ज़्यादा सेल करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इफेक्टिव ट्रेनिंग। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. For example, employees of production department are given training of production techniques only,
इसमें इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग भी होता है, जैसे एम्प्लॉय केवल एक ही काम पर फोकस करता है और उसके पास लिमिटेड रेंज पर ही फोकस करता है, इसलिए उसको ट्रेनिंग देने में भी आसान होता है और एम्प्लॉय आसानी से उस ट्रेनिंग को ग्रहण भी करता है, आसानी से उस वर्क को या टेक्निक को सीख भी जाता है। इसलिए इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग में दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। नाउ लोअर कॉस्ट, it leads to minimum duplication of effort which results lower cost। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है, कॉस्ट में कमी आती है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में जैसे प्रोडक्शन कोई वर्क करना है तो एक काम को एक ही व्यक्ति को असाइन किया गया है, तो वो काम वही व्यक्ति करेगा, दूसरा नहीं करेगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, इसका मतलब लोअर कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, और लोअर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। एडवांटेज तो है, लेकिन उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर कुछ डिसएडवांटेजेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? emphasis on departmental objectives, conflict between departments, difficulty in interdepartmental coordination। Due to separation is department head emphasis on the performance of his function and lacks emphasis on overall objective of the company। इसमें जो है ड्यू टू सेपरेशन इस डिपार्टमेंट हेड से अलग अलग डिपार्टमेंट होने के चलते सभी डिपार्टमेंटल है, जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का हेड जो है वो उसका इम्फेसिस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल कब होगा? जब लेस प्राइस में सेल करेगा, और जब लेस प्राइस में सेल करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, जैसे लेस प्राइस में सेल करेगा तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो अपना उसका इम्फेसिस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। अगर ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हो सकता है वेस्टेज रिसोर्सेज भी हो सकता है, क्वालिटी प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है, तो उसमें भी इसके चलते प्रॉफिट पर असर पड़ेगा और ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो हैम्पर हो सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने काम को ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं, दूसरे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको उस पर ज़्यादा इम्फेसिस नहीं देते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, सिंस इंटरेस्ट ऑफ conflict between departments, in the interest of different department differs, there will be interdepartmental conflict which are harmful to the organizational interest। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग इंटरेस्ट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना इंटरेस्ट है, सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, फाइनेंस का कहाँ से फाइनेंस अरेंज करे और कहाँ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, ये उसका इंटरेस्ट है। तो ये सभी डिपार्टमेंट में कुछ कुछ मुद्दों पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे पहले बताया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, अगर कभी कभी ऐसा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा सेल करना चाहता है, तो ज़्यादा सेल करना चाहता है तो ज़्यादा सेल करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। नाउ डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ऑल डिपार्टमेंट हेड्स में
work as their own wish. No doubts, this facilitates coordination within the department, but it makes inter-department coordination difficult. इसमें जो है सभी जो डिपार्टमेंटल हेड है अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि नो डाउट दिस फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट्स। अपने डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेशन रहता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले बताया, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा गुड्स का सेल करना चाहता है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये डिफ़िकल्टी राइज हो सकता है। थैंक यू।